All right, so in the previous video, we were done with the equilibrium through injections and leakages in the economy. This was a very important lecture. You must have complete knowledge of what we are dealing with here. No need to make it again. We have already done with this. लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है? Just to understand before we go to a very important thing. ठीक है, मतलब इस चैप्टर की समझ लें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो. हाँ जी, national income, these are injections and leakages या withdrawals. This was our leakage function या withdrawal function. This was the injection function. We know जहां ये equal होते हैं, that is the place where our 45-degree line actually intersects. This is the 45-degree line. This is national income. Our aggregate expenditure would actually intersect at this point. So this is the equilibrium level of national income. ठीक है, Y1 पे क्या हो रहा है? What is happening at Y1? Injections are greater than leakages. Due to this, aggregate expenditure, which includes what? Which includes inflation. तो वो inflation की वजह से, rising prices की वजह से ज्यादा नजर आ रहा है national income real GDP से. So the amount by which it exceeds the real national income is what? The inflationary gap. और इसी तरह यहाँ पे लीकेजेस ज्यादा हैं, इंजेक्शंस कम है. दिस इज द डिफ्लेशनरी गैप. आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है. और भी बहुत सारी चीजें देखनी है, शिफ्ट्स देखने हैं. वैसे पता है वी नीड टू डू शिफ्ट्स बिफोर दैट, लेकिन क्योंकि आज जरा माहौल अच्छा है तो हम मल्टीप्लायर करते हैं. शिफ्ट्स आप हैंडल नहीं करेंगे. आ जाए, हम पहले शिफ्ट्स कर रहे हैं. I was talking about multiplier. Multiplier most probably फिर हम कल करेंगे, क्योंकि शिफ्ट्स के बगैर ये हो नहीं सकता. आई बात समझ में? आ जाए जी. शिफ्ट्स इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन. तो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा था वो अब अगले लेक्चर में जा रही है, ठीक है? या हो सकता है आज उसकी हम थोड़ी सी बेस बना लें. Shifts in the aggregate expenditure function, bracket में pivotal shifts. All right जी. So याद रखें एक चीज, aggregate expenditure function is what? C plus I plus G plus X minus M. This is the line of equilibrium. This is the aggregate expenditure function. लें जी, pivotal shifts, अगर किसी pivotal shift की वजह से डिक्रीज आ रहा है तो the entire aggregate function shifts downwards in a pivotal manner, और अगर इंक्रीज आ रहा है so the aggregate expenditure function shifts upwards in a pivotal manner. इस केस में इक्विलिब्रियम यहां चला जाएगा, इस केस में इक्विलिब्रियम यहां आ जाएगा. Now what are the reasons for pivotal shifts? Reasons for pivotal shifts, इसको समझना पड़ेगा जी. What is the aggregate expenditure function? It is C plus I plus G plus X minus M. बात को समझें. कंजम्पशन क्या है? इंड्यूस्ड है, ऑटोनमस है? कंजम्पशन फंक्शन इंड्यूस्ड था, ऑटोनमस था? दोनों है. गुड चेक. कंजम्पशन फंक्शन इंड्यूस्ड भी है, ऑटोनमस भी है. इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड ऑटोनमस होता दोनों है. हमने क्या अज्यूम किया? हमने ऑटोनमस इंड्यूस किया. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंड्यूस्ड ऑटोनमस होता ही ऑटोनमस है. एक्सपोर्ट्स इंड्यूस्ड ऑटोनमस, ऑटोनमस. इंपोर्ट्स
इंड्यूस्ड। जब भी कोई इंड्यूस्ड चीज चेंज होगी, it will bring a pivotal shift. It will bring a pivotal shift in aggregate expenditure function. And there are only 3 reasons for that. पहला है, पहले 2 कंजम्पशन से रिलेटेड है, अगले 2 इंपोर्ट से रिलेटेड है। पहला क्या है? स्पेंडिंग एंड सेविंग ट्रेंड्स कह लें, पैटर्न्स कह लें, in other words, what I'm trying to say here is, if due to some reason MPC rises, what will happen? Consumption function ऊपर चला जाएगा, या फिर MPC falls, consumption function नीचे चला जाएगा. Do we understand this? And this will bring a pivotal shift. This will bring a pivotal shift. अब MPC कब बढ़ेगा? इस तरह भी हम कह सकते हैं MPC बढ़ गया या MPS गिर गया, रेशो ऑफ सेविंग कम हो गया, या रेशो ऑफ सेविंग बढ़ गया तो रेशो ऑफ कंजम्पशन कम हो जाएगा, जिससे हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा? पिवटल मैनर में नीचे आएगा. अब ऐसा क्यों होता है? इसके वेरियस रीजंस हैं. क्यों रेशो टू सेविंग्स और कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? जैसे पाकिस्तान में इन द रीसेंट ईयर्स एनपीएस इंक्रीज हुआ है. क्यों एमपीएस क्यों इंक्रीज हुआ है? नॉट अनसर्टेनिटी. पिछले 2 डेकेड्स में इस्लामिक बैंकिंग आई. पहले लोग बिल्कुल ही क्या थे? बैंकिंग सिस्टम में बिल्कुल सेव नहीं करते थे. जब से इस्लामिक बैंकिंग आई है, लीजिंग बढ़ गई है. मतलब सेविंग तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर दैट आपने नोटिस किया, पहले अर्ली 2000s तक लीजिंग का कोई चक्कर ही नहीं था. ठीक है, नॉक ऑन द डोर जी. नंबर 2, यार ये बहुत बड़ी डिबेट है इसका. आई एम नो बडी टू कमेंट ऑन दिस के इस्लामिक बैंकिंग असल में क्या है. हाँ, लेकिन जिसने फतवा दिया है उसका सीन है, और बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब डिफरेंट चीजें हैं, और इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सही है गलत है, बस आई डोंट नो. चलें जी. अच्छा जी, एक और चीज क्या है? इनकम टैक्सेस. ये पहले भी बात हो चुकी है. इनकम टैक्सेस पिवटल शिफ्ट क्यों लेके आते हैं? ठीक है, इनकम टैक्स ऊपर जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी. डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, कंजम्पशन फंक्शन कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो गया? कम हो जाएगा. पिवटल शिफ्ट नीचे की तरफ. डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ये चीज समझ आई है या नहीं? एमपीसी क्या है? चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम. ठीक है, बात समझ आई? अब हुआ क्या है कि टैक्स बढ़ गया है, तो इनकम तो टोटल है, डिस्पोजेबल इनकम से तो नहीं डिवाइड कर रहे हैं हम. इनकम तो टोटल है, तो क्या होगा? वो तो वही रही, कंजम्पशन और गिर गई, तो रेशो जो है वो और डिक्रीज कर जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? इंपोर्ट एक्सपेंडिचर. इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट्स वैसे ही इंड्यूस्ड हैं. इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो वो क्या करेंगी? अच्छा, बाय द वे दिस इज नॉट जस्ट कंजम्पशन, फिर उसकी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी ऊपर जाएगा, इसकी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नीचे जाएगा, इसकी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नीचे जाएगा. तो डायरेक्टली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को क्या होगा? क्योंकि माइनस एम है, तो ऑपोजिट होगा. इसके अलावा इन तीनों को रट लें.
इसके अलावा, इन तीनों के अलावा, एनीथिंग दैट अफेक्ट्स the aggregate expenditure components of aggregate expenditure function C, I, G, X minus M will bring a parallel shift in the aggregate expenditure function. इन तीनों के अलावा हजारों चीजें हैं जो C को, I को, G को, X minus M को अफेक्ट कर रही हैं, वो क्या करेंगी? वो पैरेलल शिफ्ट लेके आएंगे. बस सिर्फ ये तीन याद रखनी है, बाकी तो हमें पहले से ही याद है, एएस से याद है. माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. एम बढ़ा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन नीचे आएगा. आ जाए जी, हेडिंग दे दें दोबारा. पैरेलल शिफ्ट्स इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन. उसके अलावा सारी चीजें जो सी, आई, जी, एक्स माइनस एम को अफेक्ट करती हैं will bring a parallel shift in the aggregate expenditure function. अगर बढ़ गया तो ऊपर, गिर गया तो नीचे. और रीजंस ढेरों हैं, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, या कर लेंगे हैंडल? कंजम्पशन के क्या है जल्दी से बता दें. इंटरेस्ट रेट्स, इवेंट्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. ठीक है, बात समझ आई. वेल्थ, इन्वेस्टमेंट के क्या है? सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज. आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? आ जाए. नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. याद रखें, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपने हमेशा आगे इस तरह बनाना है. यहां पे इस चक्कर में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में एडीएस अप्रोच ज्यादा सुपीरियर है, ये इतना सुपीरियर नहीं है, क्योंकि इस पे हम क्लैरिटी से दिखा नहीं सकते कि ये है. ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल याद रखें, आप आगे बना सकते हैं. वेल, you can show that full employment level has been achieved. This is full employment. This can be also referred as, जो कि हमने आगे पढ़ना है लेकिन अभी आप लिख लें, this can be also referred as potential output. हमेशा गुड चेक. पोटेंशियल आउटपुट ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? एक्चुअल आउटपुट भी कह सकते हैं. करेंगे पोटेंशियल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट क्यों कहते हैं वो करेंगे. पोटेंशियल आउटपुट, इसकी एनालॉजी पता है क्या है? इसकी एनालॉजी देखनी है आपने. ये क्या चक्कर चल रहा है? ये चक्कर चल रहा है, अभी आपको समझ आएगा. रिमेंबर, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ केन्जियंस. ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एक्चुअल आउटपुट है. ठीक है,
ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द पोटेंशियल मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी। समझ आइए ये क्या चीज है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आगे है, एक्चुअल आउटपुट उससे, एक्चुअल इक्विलिब्रियम उससे पीछे है। यूर ऑपरेटिंग, एक और एनालॉजी देखनी है, ये ले, बनानी नहीं है, समझने के लिए। ये क्या है? ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। असल में कहां बैठे हुए? असल में इधर बैठे। समझ आई बात की? डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये एनालॉजी समझ आई है? जी 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 जी। फुल एम्प्लॉयमेंट, ना ना ना, कोई फिक्स प्लेस नहीं, बस थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी आगे, कि हम फुल पोटेंशियल से थोड़ा सा पीछे ऑपरेट करें, हम उसके ऊपर भी ऑपरेट कर सकते। ठीक है। सच्ची सच्ची बता दें, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जरूरत है? आगे पढ़नी है अभी डिटेल में, जरूरत है या नहीं है? बगैर समझाए आगे जाऊं? चलें फिर, यूज उसका देखना है। पक्की बात है ना? ये ना अभी कोई पूछे कि ये टैक्स ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। पक्की बात है? कर लेंगे हैंडल, या कोई ओवरव्यू दे दूं? नलायको, चलें जी, ओवरव्यू है, जल्दी से इसको देख लें। पॉलिसीज ना लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सी दो पॉलिसीज होती हैं? नलायको, सप्लाई साइड, डिमांड साइड। ठीक है। एक और ड्रॉबैक इस अप्रोच का क्या? ये सप्लाई साइड नहीं दिखा रही। क्या नहीं दिखा रही? सप्लाई, एडीएस आपको सप्लाई साइड भी दिखा रहे, ये आपको सप्लाई साइड नहीं दिखा रही। यहां पे सिर्फ बात होगी किसकी? डिमांड साइड की। डिमांड साइड पॉलिसीज कौन सी हैं? अब बताएं। फिस्कल पॉलिसी एंड ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसीज आगे करना है, ये हम सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही टचिंग कर रहे हैं। ये जा रही है आवाजें? हाँ जी, टूल्स बता दें, जल्दी से बता दें। टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टूल्स बता दें तीन। इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, क्या बात है, क्रेडिट रेगुलेशंस। कुछ बुक्स में मनी सप्लाई क्रेडिट रेगुलेशन सेम चीज है। वो बुक्स पागल है जी। एक और चीज भी है वैसे बाय द वे, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेम आउट कर रही होती है क्या? एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी इधर से वो वाली चीज है ना, जब मैंने लास्ट करेंगे करेंगे, डिटेल में जाते हैं। जल्दी से बता दें, एक्सपेंशनरी या इन्फ्लेशनरी टैक्सेस ज्यादा, फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। चलें जी, इसको यहां छोड़ दें, आगे आगे। पॉलिसी implications, yes, on aggregate expenditure function।
या आगे लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन, ये हमारी 45 डिग्री लाइन है, ये हमारा एक्चुअल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, व्हाई नॉट। हम बैठे हैं यहां पे, ये हो गई गड़बड़। द इकोनॉमी इज इन अ डिसइक्विलिब्रियम, द इकोनॉमी इज इन अ डिसइक्विलिब्रियम, और चल क्या रहा है, ये क्या है, डिफ्लेशनरी गैप है, तो ऐसे कुछ कहते थे ना, डिफ्लेशनरी गैप कहते थे। जो एएस में इंक्लूडेड था बुक्स में, लेकिन आपके तो कुछ नहीं पढ़ना। क्या क्या चीज? होता था बीच में? वो डेड वेट लॉस था, सॉरी। डेड वेट लॉस किधर आ गया है, और एएस में बुक में नहीं कोई इंक्लूडेड डेड वेट लॉस, लोग कराते हैं डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस A2 में, और हम पढ़ चुके हैं अभी। इधर पहुंच गए हो, डेड वेट लॉस कहां से आ गया? हाँ जी, मसले का हल बताएं। डिफ्लेशनरी गैप है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, क्या करें? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगा दें, मॉनेटरी भी लगा सकते हैं, फिस्कल भी लगा सकते हैं। आ जाए जी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर लगा दी तो मुझे बताएं क्या होता है इसके अंदर। टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या करूं टैक्स को, कि ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है C+I+G+X-M, ये बढ़ाना है किसी तरह। इफ यू आर एबल टू डू दिस, you are able to get rid of this deflationary gap. Get rid of it. How to do that? What to do to taxes? Government expenditure बढ़ा दें, असल में इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफ्लेशनरी गैप खत्म। आसान है, मुश्किल है? पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। कप ऑफ केक है, कप ऑफ केक, पीस ऑफ केक तो नॉर्मल कहते हैं, ये राते भाई कप ऑफ केक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ जी, क्या करूं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी में? और क्रेडिट रेगुलेशंस याद आया, फ्लैशबैक मिला है, बस सिर्फ क्या है, एप्लीकेशन डिफरेंट है। वहां एडीएस का सीन था, यहां इसका सीन है क्रेडिट रेगुलेशंस। क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई बढ़ा दें, क्रेडिट रेगुलेशंस इजी कर दें। कैसा, याद आया? चीजें वही हैं, बस एप्लीकेशन उसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आज के बाद डिफ्लेशनरी गैप जब अगर होगा तो आप क्या लगाएंगे, एक्सपेंशनरी डिमांड साइड पॉलिसीज। डज दिस मेक सेंस? इतनी सी बात थी। उधर क्या हो रहा था, उधर एडी राइट पे शिफ्ट हो रहा था। इज दिस अंडरस्टूड? तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या करते हैं, टैक्सेस कम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं, क्रेडिट रेगुलेशंस। जो ये वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, उनको ये पता होना चाहिए कि ये वैसे हमने एएस में भी पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो ये भी आएगा आगे बहुत डिटेल में, सो डोंट पैनिक, ये भी करना है। इंटरेस्ट रेट्स कम, मनी सप्लाई ज्यादा, क्रेडिट रेगुलेशंस। ऑपोजिट भी कर लें इसका, जल्दी से कर लें, स्पीड मार दें। क्रेडिट रेगुलेशंस, क्रेडिट रेगुलेशंस ये हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस which affect directly affect borrowing। पहले जब इजी सीन था, 5 साल
पुरानी कोई भी गाड़ी लीज हो सकती थी, कोई भी गाड़ी, इंपोर्टेड, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, कोई भी गाड़ी लीज हो सकती थी। कितनी अमाउंट लीज करवा सकते थे? जितना दिल करता है, 4 करोड़ की गाड़ी लीज करवा ले। फिर जब इन्फ्लेशन हो गई, इसको कंट्रोल करना चाहा गवर्नमेंट ने, तो क्या किया? पिछले 4 साल से क्या सीन है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रेगुलेशंस को टाइट कर दिए। कितने साल पुरानी गाड़ी लीज हो सकती है? 3 साल पुरानी, सिर्फ 5 साल से कम करके 3 साल। बोरोइंग मुश्किल कर दी। नंबर 2, पाकिस्तान में और क्या किया? एक और रूल चेंज कर दिए, इंपोर्टेड गाड़ी लीज नहीं हो सकती अब। सिर्फ जिसको कहते हैं सीकेडी यूनिट, जो पाकिस्तान में कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट है, सिर्फ वो लीज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, 30 लाख से ज्यादा, 3 मिलियन से ज्यादा की लोन आप नहीं ले सकते, बेशक जो मर्जी गाड़ी है। फॉर्च्यूनर लेनी है, मैक्सिमम लीज कितनी अमाउंट क्या है? 30 लाख। तो इसका मतलब अगर 2.5 करोड़ की है फॉर्च्यूनर, तो 220 आपने डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। सिर्फ 30 आप लीज करवा सकते हैं। 1 करोड़ की गाड़ी है, 70 मिनिमम डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। पहले ये रेगुलेशन थी नहीं, पहले आप 10% डाउन पेमेंट करें, बाकी देते रहे 7 साल में। पहले 7 साल की लीज थी, अब मैक्सिमम लीज 5 साल की होगी, 7 साल खत्म कर दी। क्रेडिट रेगुलेशंस को क्या किया? टाइट कर दी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि बोरोइंग कम हो। गेम समझ गए? चले चले, तो बना लिया दोबारा। आगे आगे चला करें, मेरे से ये बच्चों वाली बातें आगे बनाया करें। मैंने सोचा बना भी लिया, आप इतनी देर में मैं उसको समझा रहा हूं। क्या बात कर दी? ये ले, क्या इकोनॉमी में भाई? दिस इज नोन एज अ टिपिकली ओवर हीटेड इकोनॉमी। व्हाट इज दिस? दिस इज एन ओवर हीटेड इकोनॉमी। पानी फेंके इस पे, ठंडा करें इसको। कोई ऐसा चक्कर चलाएं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नीचे आए, और ये जो क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है, अब ज्यादा हो गया। ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है कम हो जाए। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी। अभी आप किसके थ्रू गुजर रहे हैं पिछले 3 साल से पाकिस्तान में? नहीं नहीं, डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, ग्रोथ है, रिसेशन भी नहीं है। नहीं नहीं, आपका पर्सनल नहीं पूछना। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या करेंगे? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम करना है, कैसे करें? क्या करूं? ओवर हीटेड इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन कम करें, इन्फ्लेशनरी गैप खत्म कर दें, जीरो कर दें। टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, क्रेडिट रेगुलेशंस, गेम ओवर। आसान है मुश्किल? क्वेश्चन फॉर टुमारो एंड द नेक्स्ट वीडियो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इस पे सोचना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इंजेक्शन, ठीक है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये जो बन रहा है इंटरचेंज, ठीक है? आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, अज्यूम कर लेते हैं 53 बिलियन रुपीज, ठीक है? 53 अरब से तो बहुत ज्यादा है, 100 अरब से भी ज्यादा का बन रहा है। कच्चे जी, 53 बिलियन रुपीज गवर्नमेंट ने लगा दिए। बाकी चीजें कांस्टेंट होल्ड कर दें, आय को फिलहाल कांस्टेंट कर दें, सी को कांस्टेंट कर दें, एक्स को भी कांस्टेंट कर दें, एम को भी कांस्टेंट कर दें। सिर्फ एक चीज हुई है,
53 बिलियन से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उसकी वजह से नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। द क्वेश्चन इज, इसकी वजह से नेशनल इनकम जो बढ़ेगा क्या वो एग्जैक्ट 53 बिलियन से बढ़ेगा, मोर देन 53 बिलियन से बढ़ेगा, या लेस देन 53 बिलियन से बढ़ेगा? Within a year, nothing else happened, just this 53 billion, nothing else is happening in the economy. सिर्फ ये 53 बिलियन की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, बाकी सब इनिशियली जीरो है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। ये देखें, ये पूछना चाह रहे हैं कि जितना पैसा लगे बनाने में उतना पैसा वापस आएगा। ये देखें, बनाना नहीं है, सिर्फ सोचना है, फूड फॉर थॉट। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक हो गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये जो बढ़ा, इधर देखें, कॉन्सेंट्रेट करें, पैकिंग ना करें, 53 बिलियन से बढ़ा, कितने से बढ़ा? ये जो नेशनल इनकम बढ़ा, क्या ये एग्जैक्ट 53 बिलियन से बढ़ेगा, 53 बिलियन से ज्यादा से बढ़ेगा, 53 बिलियन से कम से बढ़ेगा? एग्जैक्ट से बढ़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? विद इन अ ईयर, ओवर अ ईयर, ये शुरू में हुआ साल के, एग्जैक्ट। हाँ इनिशियली तो और कुछ वो नहीं, इंडिपेंडेंटली उनको कुछ नहीं होने वाला, एग्जैक्ट बढ़ेगा। नो आंसर। ये पता चलेगा अगले एपिसोड में, जो कि है कल। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहले पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। द मल्टीप्लायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in this entire chapter.